Hello, dear students. Today we shall start chapter Silk Road of Hornbill book. This chapter is written by Nick Middleton. The main theme of this story is to highlight the journey of the author to Mount Kailash. Let us see how the author explains his journey. A flawless half moon floated in a perfect blue sky in the morning. The author explains here that in the early morning, a flawless half moon floated in perfect blue sky. On the morning we said our goodbyes. The author says that he started his journey in the morning. Extended banks of cloud, like long French loaves, glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with the rose tinted blush. Here, in the second line, the author compares the extended banks of cloud with French loaves. Loaves means bread loaves. ऑथर जो है वो मॉर्निंग जर्नी के दौरान जो बादल हैं उनको एक्सप्लेन करता है, कंपेयर करता है फ्रेंच लोव्स के साथ कि वो बादल जो हैं वो फ्रेंच लोव्स की तरह लग रहे हैं और सूरज की रोशनी से ग्लोड पिंक, वो पिंक लग रहे हैं. द सन इमर्ज टू स्प्लैश द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स विद द रोज टिंटेड ब्लश. द ऑथर आल्सो सेज दैट विद द rays of sun, with the sunbeams effect, the mountains and the clouds were looking pink. Now that we were leaving Ravu, Lahamo said she wanted to give me a farewell present. Author explains that they started their journey from Ravu place. Ravu is the name of place from where they started journey. Lamo is the name of a lady, second character of the story. Author explains that Lamo said she wanted to give me a farewell present. वो एक उसको गिफ्ट देना चाहती थी. One evening, I had told her through Daniel, the third character, that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora. The author says that कि मैंने एक डैनियल, मेरा जो फ्रेंड है, उसके थ्रू उसके पास मैसेज पहुंचाया था कि मैं जो हूँ माउंट कैलाश पर कोरा करने जा रहा हूँ. सो नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोरा? कोरा का मीनिंग क्या होता है? कोरा मीन्स टू टेक ए राउंड ऑफ द पिलग्रिम्स, मतलब जो तीर्थ स्थान पे आप जाते हो उसकी परिक्रमा करना, चक्कर लगाना, उसको हम क्या कहते हैं? कोरा. तो ऑथर वांट्स टू गो माउंट कैलाश. ऑथर कहाँ जाना चाहता है? माउंट कैलाश पर्वत पे. और उसका क्या करना चाहता है? कोरा, मतलब उसकी जो है वो परिक्रमा करना चाहता है, उसके गोल चक्कर लगाना चाहता है. एंड शी सेड दैट आई ought टू गेट सम वार्मर क्लॉथ्स. लामा सेड दैट तुम वहाँ पर्वत पे जा रहे हो, यू आर गोइंग टू माउंट कैलाश. तो लैमो सेड दैट तुम्हें वहाँ पर किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? वार्मर क्लॉथ्स की. So after ducking back into her tent, ducking back means going inside and coming back, she emerged carrying one of the long-sleeved sheepskin coats. तो what was that farewell present? वो farewell present क्या था? sheepskin coat. लामो ने उसे जो है वो sheepskin coat दिया, फर वाला कोट दिया. Next character is Seaton. Seaton sized me up as we clambered into his car. सीटन की कार में मैं जब गया वो कोट डालकर, तो उसने क्या कहा? ए यस, ही डिक्लेयर्ड. ड्रोकबा सर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रोकबा? ड्रोकबा मीन्स शेफर्ड. ड्रोकबा मीन्स शेफर्ड मीन्स द पर्सन हु वॉज वेयरिंग जैकेट ऑफ दैट शीप वूल, ही वॉज कॉल्ड शेफर्ड. जो भेड़ों को चराता है, अयारी, उसको शेफर्ड कहते हैं. तो ड्राइवर ने
ऑथर को क्या कहा? ड्रोकबा, यू आर लुकिंग लाइक अ ड्रोकबा। वी टुक ए शॉर्टकट टू गेट ऑफ द चैंटांग। The author explains that he and Seaton took a shortcut to the Changtang. Changtang is the place of Tibetan plateau. Seaton knew a route that would take us southwest. Seaton को एक रूट का पता था जो उन्हें साउथ वेस्ट की तरफ ले जाएगा, almost directly towards Mount Kailash. It involved crossing several fairly high mountain passes. काफ़ी उसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो थे वहाँ से ये क्रॉस होता था। He said, but no problem, sir. सीटन ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर। He assured us, if there is no snow, what was the likelihood of that, I asked. उसने कहा but no problem sir. He assured us if there is no snow, अगर बर्फ़ ना हुई तो then there would be no problem, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। What was the likelihood of that, I asked. Not knowing sir until we get there. तो मैंने कहा कि what was the likelihood of that, I asked. अगर स्नो हुई तो फिर क्या होगा? Then he said, not knowing sir until we get there. जब तक हम वहाँ पहुँचते नहीं तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। From the gently rolling hills of Ravu, the shortcut took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles. The author explains that from the gently rolling hills of Ravu, रावू की जो पहाड़ियाँ थी, gently rolling means उनकी जो ऊंचाई है वो ज़्यादा नहीं थी, स्मॉल थी। The shortcut took us across vast open plains with nothing. वो शॉर्टकट से हम जहाँ से निकले वो हमें कहाँ तक ले गया? ओपन प्लेन्स मीन्स ओपन मैदान थे। इन नथिंग इन देम एक्सेप्ट फ्यू गैजल्स, वहाँ पर क्या थे? गैजल से, गैजल इज ए टाइप ऑफ एनिमल विच इज़ फाउंड इन अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट इज, वो जो गैजल्स थे, जो एनिमल्स थे, वो क्या कर रहे थे? दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड पास्चर्स एंड फ्राउन बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड। निबलिंग का मतलब होता है ईटिंग। वो जो घास जो थे वो खाड़ रहे थे। एरिड पास्चर्स, एरिड का मतलब क्या होता है? ड्राई। एंड पास्चर मीन्स ओपन प्लेन्स ऑफ ड्राई ग्रास। एंड फ्राउन बिफोर बाउंडिंग इनटू द वॉइड, वो एम्प्टी जगह पे वो भाग रहे थे। बाउंडिंग अवे इनटू द वॉइड, वो खाली जगह कहाँ तक जाती थी वो नहीं पता था। फर्दर ऑन, where the plains became more stony than grassy, a great herd of wild ass came into view. The first of all, the author explains about the gazelles. Second, on the way he saw a great herd of wild ass. Ass means donkey. Seaton told us we were approaching them long before they appeared. We were approaching them long before they appeared. जब तक वो हमारे पास थे, सीजर ने कहा हम उसको वहाँ तक पहुँच रहे हैं। क्यांग, he said, pointing towards a far off pall of dust. और सीटन जो ड्राइवर है वो इन वाइल्ड एस को किस नाम से बुलाता है? क्यांग। तो ये क्यांग है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट, वो डस्ट की तरफ, क्योंकि ये भाग रहे थे वहाँ पर, तो ही पॉइंटेड आउट। व्हेन वी ड्रू नियर आई कुड सी द हर्ड गैलोपिंग एंड मैस। ऑथर एक्सप्लेन दैट जब हम उनके पास गए, आई कुड सी ए हर्ड गैलोपिंग, गैलोपिंग मीन्स रनिंग। इनका जो झुंड है, हर्ड मतलब झुंड, गैलोपिंग इकट्ठे मिलकर भाग रहे थे। एंड मैस मीन्स इन ग्रुप। व्हीलिंग एंड टर्निंग इन टाइट फॉर्मेशन, कभी कभी वो अलग अलग की एक्टिविटीज़ कर रहे थे, कभी वो गोल गोल भाग रहे थे, टर्निंग कभी मुड़ते थे। ऐसे लग रहा था कि इन टाइट फॉर्मेशन एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैन्यूवर्स ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स, कि वो अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर रहे थे। इस तरह ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो कोई प्रैक्टिस कर रहे हों। प्लूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, तो उनके भागने से जो है हवा के अंदर काफ़ी डस्ट जो है वो उड़ रही थी।
As hills started to push up once more from the rocky wilderness, अब पहाड़ियों के बाद जो है रॉकी वाइल्डरनेस काफ़ी चट्टानों का सीन आ गया. We passed solitary drokbas tending their flocks. ड्रोकबा वर्ड मैंने पहले बता चुका हूँ, शेफर्ड होते हैं. कि हम वहाँ पर जो अलोन द्रोकबास थे, टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, वो अपनी भेड़ों को चरा रहे थे. समटाइम्स मैन, समटाइम्स वुमेन, दीज वेल रैप्ड फिगर्स वुड पोज एंड स्टेयर एट आवर कार. तो रास्ते में मैन, कभी वीमेन, वो रुकते और हमारी कार की तरफ वो घूर घूर कर देखते. ओकेजनली वेविंग अस वी पास्ट, और हम जो है वहाँ से निकल लिए. When the track took us close to their animals, the sheep would take evasive action. जब हमारी गाड़ी जो है उन एनिमल्स के पास गई, the sheep would take evasive action. evasive मतलब भाग जाना. Veering away from the speeding vehicle. तो वो स्पीडिंग व्हीकल जैसे उनके पास आ रहा था, वो छटपटा कर वहाँ से भाग गए. Next, the author explains, we passed nomads, dark tents pitched in splendid isolation. अब नोमेड्स का सीन एक्सप्लेन करता है ऑथर. नोमेड्स क्या होते हैं? सम पर्सन्स दोज आर लिविंग इन टेम्परेरी हटमेंट्स. नोमेड जो हैं अलग एरिया में वो टेंट लगा कर रहते हैं. द ऑथर एक्सप्लेन्स हियर कि नोमेड का सीन कि वहाँ डार्क टेंट लगा रखे थे. इन स्प्लेंडिड आइसोलेशन, अकेले थे वो. यूजली विद ए ह्यूज ब्लैक डॉग, ए तिब्बतन मास्टिफ. द ऑथर एक्सप्लेन्स दैट उनके पास बहुत बड़े बड़े काले रंग के डॉग थे जिसका नाम था तिब्बतन मास्टिफ. स्टैंडिंग गार्ड, ये डॉग जो हैं उनके गार्ड का काम करते थे. दीज बिस्ट्स वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ आवर अप्रोच एंड फिक्स अस इन देयर साइट्स. दीज बिस्ट, बिस्ट का मतलब एनिमल्स. कॉक देयर ग्रेट बिग हेड्स, उन्होंने अपने बड़े बड़े सिरों को बाहर निकाल रखा था. व्हेन दे बिकेम अवेयर ऑफ आवर अप्रोच, जब उन्हें लगा कि हम वहाँ उनकी तरफ पहुँच रहे हैं. एंड फिक्स अस इन देयर साइट्स, तो उन्होंने अपनी निगाह में हमें फिक्स कर लिया. एज वी कॉन्टिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर, जैसे हम उनके पास गए, दे वुड एक्सप्लोड इन टू एक्शन स्पीडिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स अस. वो बिल्कुल तैयार हो गए और हमारी तरफ बड़ी स्पीड से भागे. लाइक ए बुलेट फ्रॉम ए गन एंड नियरली एज फास्ट, जैसे गन से बुलेट निकलती है, बहुत फास्ट से, बहुत स्पीड से जो है वो हमारी तरफ वो डॉग भागे. दीज शैगी मॉन्स्टर्स ब्लैकर दैन द डार्केस्ट नाइट. ये जो शैगी बड़े बड़े बालों वाले मॉन्स्टर्स, डॉग को बोला ऑथर ने. ब्लैकर दैन द डार्केस्ट नाइट, रात से भी ज़्यादा काले थे. यूजली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स, उनके गले में क्या था? रेड कलर के कॉलर्स, पट्टे थे. एंड बार्क्ड फ्यूरियसली विद मैसिव जॉज, और बड़े ही खूंखार तरीके से वो भौंकते थे. विद मैसिव जॉज, इनके बड़ा बड़ा जबड़ा था कुत्तों का. दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, उन्हें हमारे व्हीकल्स का कोई डर नहीं था. शूटिंग स्ट्रेट इन टू आवर पाथ, कॉजिंग सीटन टू ब्रेक एंड स्वर्व. इतनी स्पीड से वो गाड़ी हमारे रास्ते में आ रहे थे. कॉजिंग सीटन, सीटन को ना ड्राइवर, जिससे जो ड्राइवर को परेशानी हो रही थी, वो उसको गाड़ी की ब्रेक लगानी पड़ती थी और काफ़ी उसको झेलना पड़ता था. सो दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी सिल्क रोड. तो इन दिस स्टोरी you read that how the author explains his journey from Ravu to Mount Kailash, and in this part 1 he sees gazelles. वो gazelles को देखता है. gazelles के बाद किसको देखता है? वाइल्ड एस को देखता है.